जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ। ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਰੇਵੜੀਆਂ, ਗੱਚਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਡੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਛਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ 5-5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਵਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜਵਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ 0017 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਵਸਤਰ ਦਾ ਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 14 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ 14 ਸਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 14 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ 14 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਣੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਘੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਦਾਨ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁੜ ਤੇਲ ਆਟਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸਤਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੂਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 108 ਤਿਲ ਤੇ 51 ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 41 ਦਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ 41 ਦਾਣੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 41 ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਗਿਨੇ ਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹਲਦੀ, ਘਿਓ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਲ ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤਿਲ ਹਲਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁੜ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਓ, ਥੋੜੀ ਹਲਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਸਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ
ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਇਹੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਭਸਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਕਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਕਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ, ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਕਰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਗਏ, ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਦੇ ਪਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਧੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ। ਆਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਸੋ ਸਦਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਸ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਿਭਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय भोलेनाथ। आपके पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार करें। जय गुरु जी, आपके भी पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार करें। शुक्राना भोलेनाथ, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे काम बनाने के लिए, मुझे मेरे दुखों से उबारने के लिए। आज मैं बैंक गई थी गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको भी नमन, शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। सॉरी, मैं शुक्राना करना भूल गई आपका। गुरुजी, आज मैं बैंक गई थी, अभी वापस आई हूँ मेरा काम बनाने के लिए। शुक्रिया। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपका स्मरण किया और कहा गुरुजी मेरा काम बना दीजिए, और आपने मेरा काम बना दिया। शुक्राना उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। सभी लोगों का काम बनाए इसी तरह से, दुख में संकट में सबके साथ रहें गुरुपा, जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं शुक्राना करूँगी, घर जाके पहुँचते ही बस चाय बनाई और शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। और मेरे भाई की जो डेथ हुई, चचेरे भाई की, उससे दुख से भी मेरे को धीरे धीरे उबारने के लिए शुक्राना। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो रही हूँ। वैसे तो ये दुख बहुत बड़ा है मेरे लिए, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। इतने दुख सह लिए गुरुपा, उनको सहते सहते अब तो आदत सी हो गई है। अब तो एक दिल में सुकून रहता है, गुरुपा है मेरे साथ, सब ठीक कर देंगे। मेरे भाई की आत्मा को शांति देना गुरुपा। आप हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है। आप मुझे पल पल हिम्मत दे रहे हैं, मैं जानती हूँ। इसी तरह से मेरे साथ रहना, सभी दुखियों के साथ रहना, दुखों से उबारना सबको गुरुपा, सारी दुनिया को दुखों से उबारना, जीव जंतुओं को भी, पशु पक्षियों को भी, पेड़ पौधों को भी जीवन देना, खुशहाल जीवन देना। मैं यह कामना करती हूँ दिल से आपसे, और जितनी कोशिश हो सके मेरे से बन पाए, मैं भी इस काम में भागीदार बनूं, सबके दुखों को दूर करने के लिए। गुरुपा, आपके बहुत सारे मैसेजेस मिले मुझे, प्यारे प्यारे। कि आज बहुत भागा वाला दिन है, जल्दी तेरे घर के संकट और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। हाँ जी गुरुपा, आप हैं तो कष्ट तो आप दूर करते ही रहते हैं। अपनी बेटी को कष्ट में नहीं देख पाते। बेटी, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जिस दिन तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ, उस दिन गायब हो जाती है। लेकिन आज तेरे गुरु का आदेश है, आज तुझे तिजोरी भर के आशीर्वाद मिलेगा। तेरे घर में सुख शांति बरकत और खुशियों की बारिश होगी, ये मेरा वचन है। मैं जानता हूँ सालों से तेरी ज़िंदगी एक ही जगह पर ठहरी हुई है। तेरे कान तरस गए हैं एक शुभ समाचार सुनने के लिए, लेकिन अब तैयार हो जा। आज मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जिससे तेरा पूरा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा, और तू नए शुभ समय का हर्षित होकर स्वागत करेगी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी की इतनी चिंता करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत चिंता रहती है। पुत्र कल तक का इंतज़ार करना ही क्यों है, जब मैं तुझे आज रात ही दिल खोल कर असीम कृपा
तेरे परिवार पर बरसाना चाहता हूँ। तो आज मेरी एक बात मान, अगर तू मेरी लाडो रानी है और मुझे दिल से प्यार करती है तो तेरे कदमों में चांद क्या सितारे तक बिछा दूँगा। तुझे पैसों की टेंशन है, सुबह तक सॉल्व हो जाएगी। एक अजनबी तेरी बहुत बड़ी मदद करने आएगा। तेरी इज्जत में ऐसे बच्चों के आगे ख़राब नहीं होने दूँगा। विश्वास नहीं, एक शुक्राना कर दे, उसके बाद इसे और भक्तों के साथ शेयर कर। सुबह तक बड़ी खुशी तेरे चौखट पर खड़ी मिलेगी। तुझे इसे इग्नोर कर भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं तुझे ही देख रहा हूँ। जी गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैंने शेयर कर दिया था और इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट गुरुपा। आंटी, आज मेरा कड़ा आदेश है कि मैं तेरी लाइफ में इतनी तरक्की करवा दूंगा कि ये दुनिया और तेरे समाज वाले देखते रह जाएंगे। इसे मिस मत कर। नोटों में खेलने की बारी आ गई। आज मैं तेरे चेहरे की रौनक को 20 गुना बढ़ा दूंगा। आज तेरे घर से सारी दरिद्रता, बीमारी, नेगेटिविटी, बेरोजगारी समाप्त होगी। क्या तू तैयार है मिथ्या ड्रीम में कल्याणकारी हिंट को पाने के लिए? आज से तू रोना भूल जाएगी, तू बस शुक्राना कर। ये विशेष है सुख शांति का एहसास करने के लिए। इस संदेश को मामूली समझने की गलती मत करना। आज तेरा एक शेयर तुझे 2 खुशी देगा। सोच, जब ये ढेरों भक्तों के पास पहुंचेगा तो तेरे घर में तो खुशियाँ आ जाएंगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और मैंने इसे शेयर भी कर दिया था सबको। शुक्राना गुरुपा। पुत्र, आज की ये ठंड भरी रात गुरु कृपा और लक्ष्मी का अनमोल संगम है। तेरे घर में जो बरसों से कृपा अटकी हुई थी वो आज से चलने लगेगी। धन, सम्मान और सुख सब जोरों शोरों से खींचा चला आएगा। बस तू हृदय से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे पहुंचा दे, क्योंकि आज की रात ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनेगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर अपनी सेवा की पूरी कर देगी। शुक्राना गुरुपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स मिली आपकी गुरुपा। थैंक यू सो मच। मैंने सभी को शेयर कर दिया था। गुरुजी, संदेश बेटा गलत तेरे साथ नहीं हुआ। दूसरों का दुर्व्यवहार और गलत मंशा उनके चरित्र का दर्पण है, लेकिन एक शक्ति है जो उनकी नींद हराम कर देगी। वही तेरी डेस्टिनी है। तेरी सबसे बड़ी खुशी तुझे मिलेगी और उनके लिए वह उम्र भर का पछतावा होगी। यह खुशी तेरे भाग्य में मैंने खुद लिखी है। कमाल यह है कि वे तेरे जीवन में यह खुशी देखना नहीं चाहते। हाँ जी गुरुपा, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की खुशियाँ नहीं देख पाते हैं। मैं क्या करूं गुरुपा, मुझसे जलने वाले लोग बहुत मुझे मिलते रहते हैं, पर मैं परवाह नहीं करती। मैं अपना काम करती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ, सबकी भलाई करती हूँ, सब में खुशियाँ बांटती हूँ, मुस्कुराहटें बांटती हूँ और सबका अच्छा चाहती हूँ। और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं सबका भला करूँ। तू माफ़ कर देना, लेकिन बेटी मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा। तू रो मत, सबका हिसाब होगा। तेरे ऊपर लगे हर इल्ज़ाम मिटेंगे, तेरी इज्जत लौटेगी। जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफ़ी मांगेंगे। तू माफ़ कर देना, पर दोबारा उन पर भरोसा मत करना। पुत्र, जिसने तुम्हें छोड़ा था, तेरा गुरु तुझे उनके सामने बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपकी लवली ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग लेके। अब उसकी तैयारी करती हूँ अगले सत्संग की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय गुरुपा, अपना ध्यान रखना आप भी, और फिर आऊँगी। थैंक यू गुरुपा, सब ब्लेसिंग्स देने के लिए, सारी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू सो मच।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार के दिन, गुरु के लोहड़ी वाले दिन। गुरु जी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और प्यारी संगत जी को भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। गुरुपा ने आज लोहड़ी के दिन मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बेटा, आज के दिन तेरे हाथों से परेशानी और दुख दर्द के लकीरें मिटने वाली हैं। तेरे घर में धन वैभव जस सब आएगा। मैं सब कुछ अच्छा करने वाला हूँ। उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे यहाँ से दुख चला जाएगा। उसके लिए मेरे प्यारे गुरु का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, जब से आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है तब से आपने मेरे बहुत कष्ट दूर करे हैं। मैं पहले इतनी एक्टिव नहीं थी गुरु जी, जितनी आपने कर दी है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस बेटी को सबने अपनी अपनी बातों से दबाया, अपनी बात कहने नहीं दी, सबने मेरे मजाक उड़ाया, मेरे प्यारे गुरुपा महादेव बाबा सब देख रहे हैं। वो सबको सब देख रहे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा दया करी और मेरा हाथ थामा, पकड़ा। कई बार तो मुझे गुरु जी की आवाज़ भी आई थी, सुनाई भी दी थी कि बेटी क्या हुआ, पर मैं समझ नहीं पाई क्योंकि उस समय मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी और मुझे नहीं मालूम था। पर अब मेरे को समझ आता है कि मेरे गुरुपा ही थे, मेरे भोलेनाथ जी, जो हर पल मेरे साथ हैं और सदा के लिए मेरे साथ हैं, जो हर पल परछाई, छाया सब चीज़ में मेरे साथ रहते हैं, साई की तरह। उन गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो अपनी बेटी पे आने वाले हर कष्ट को पहले ही बता देते हैं और हर कष्ट बीमारी से भी छुटकारा दिलाते हैं, सत्संग सुना सुना के। इतनी प्यारे गुरुपा का मेरे मन से, दिल से बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे लोहड़ी वाले दिन कि बेटी, तेरी मम्मा ने तेरे लिए लाई और गुड़ भेजा है और हमें भी उसका भोग जरूर लगाई। मैं जिसके घर पैर रखता हूँ उसके घर से सब नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सब अच्छा होता है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैंने आज आपको गुड़ का ही भोग लगाया है, गजक का भोग लगाया है। और पता नहीं, मेरे पतिदेव भी कल बोले कि मैं देख लड्डू लाया हूँ पिन्नी वाले। मैंने सोचा पता नहीं लाया हूँ, और मैं देखी तो वास्तव में लड्डू लाए हैं। जो गुरुजी कह रहे थे ना कि बेटी, तेरी मम तेरी मम्मा तेरे लिए जो भेज रही है वो सत्य हुआ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे लिए जो पिन्नी के लड्डू और गुड़ सब भिजवाया है। मेरे मेरी माँ तो नहीं है संगत जी, अब मेरी माँ तो ऊपर है भगवान के पास। अब क्या बोलें, पर भोलेनाथ मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरे गुरुजी महाराज जो मुझे, और मेरी माता रानी अम्बे गौरी काली माता, कृष्ण भगवान मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। माता पिता ऐसा ही, मुझे कोई, इनके रहते कोई कमी नहीं है बाबा। हाँ, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज जरूर दिया था कि बेटा, तू अपनी बेटी की चिंता नहीं किया कर, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, उसे देख रहा हूँ। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, जो आपने मुझे आज मैसेज दिया ना कि बेटी, मैं तेरे दरवाजे पे कब से खड़ा हूँ, लिफाफा लेके तू दरवाजा खोल और सत्संग को सुन। उस सत्संग को सुनने से वाकई में गुरु जी मुझे बहुत ज्ञान आया कि हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि हमने उनका हाथ तो गुरु जी
पे ही सौंप दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। तो गुरुपा अब आप ही संभालें और आप ही देखें, आप ही सब चीज़ करें। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी प्यारी 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 ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबके घर में सुख शांति वैभव आए। जो ये लोहड़ी का सत्संग भी सुने ना, जो गुरुपा ने मेरे लिए भेजा है, गुरुजी ने तो गिफ्ट में मेरे लिए लड्डू गजक सब गुड़ सब भिजवा दिया। उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके घरों में ऐसी खुशियाँ आए और सब पे गुरुपा अपना प्यार लुटाएं और सबकी रक्षा भी करें रोग से, बीमारी से। गुरुपा सबको सबको ब्लेस करना, अपनी सबको खुशियाँ देना। मेरे लिए तो ये भी बहुत है बाबा। सबका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने अपने सत्संग को यही विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं अपने प्यारे भोलेनाथ जी और गुरुपा जी बहुत बहुत शुक्राना, और नीम करोली बाबा जी, हाँ उनका भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आज मंगलवार भी है ना, मुझे हाँ ये भी मैसेज आया था ना कि आज गुरु कृपा और हनुमान जी बाबा जी साथ ही में हैं, जो तेरा सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए शब्द। शिव चरणों को छूने से तन मन पावन हो, शिव के रूप अनूप की समता करे ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सभी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे इस प्यारे से सत्संग को जो भी सुने ना, उसको बहुत बहुत ब्लेसिंग देंगे मेरे प्यारे गुरुपा। उसकी बहुत धन दौलत सबसे रिद्धि सिद्धि से भरपूर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अंकल आंटी का भी बहुत सब चीज उनका भंडार भरा रहे प्यारे गुरुपा। कभी खाली ना हो उनका भंडार, खूब भरा रहे। स्वास्थ्य ब्लेसिंग सब देना उन्हें बाबा, प्यारी प्यारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, ओम वाहे नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा का चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सोमवार है और मैं संध्या वेले का सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। अभी संध्या दी और गुरुपा के साथ मैं चाय भी पी और अभी 6:38 हुए हैं और मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरुपा के पास बैठी हूँ और गुरुपा को निहार रही हूँ और गुरुपा को निहारते निहारते यही कर रही हूँ, गुरुपा आपके नाक बड़ा क्यूट लग रहे हैं, बड़ा प्यारा है आपका नाक। और आज गुरुपा का एक सत्संग भी आ रहा था। कुड़िए ये सत्संग सुन नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, ये सत्संग सुन नहीं तो भूल हो जाएगी। तो वो सत्संग मैंने देखा तो गाल पे हाथ रखे हुए हैं, नहीं सॉरी, गाल पे हाथ तो मेरे स्वरूप में गुरुजी रखे हुए हैं, इसमें दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। बिल्कुल मेरी माँ की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा कि मेरी मम्मी ही बैठी है, मेरी माँ। और आज गुरुपा में माँ नजर आ रहा है। आज गुरुपा एकदम माँ का दुलार प्यार दे रहा है और क्या बताऊं, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। और मेरी जो माँ थी जो गुरुपा के अब चरणों में चले गई है, अब वो गुरुपा की है। मेरा तो कुछ नहीं है पर जन्म दी है माँ, तो बिल्कुल गुरुपा की तरह एकदम गोरी
एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, उसकी स्किन भी, माँ की स्किन भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट था, एकदम गुरुपा की तरह। अ, आज मुझे वैसा ही लग रहा है। तो गुरुपा आज माँ की याद दिलाई और प्यार भी लुटा रहे हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं क्या बताऊं, आज मैं सुबह से इधर से गुरुपा मुझे रोज लेट से जगाते हैं, मतलब उठाते हैं, फिर हमको आराम करने के लिए भी देते हैं पहले की तरह। जैसे मैं अपने घर में थी, माँ जगा के जाती थी नीचे दुकान खोलने के लिए, क्योंकि हमारा दुकान था। सुबह सुबह दूध वाला आ जाता था तो ट्रे रख के चला जाता था, तो मेरी माँ नीचे जाती थी और जगा के, उठो उठ जाओ, सवेरे उठना चाहिए, चलो चाय बनाना। मेरी माँ बोलती थी, क्योंकि मेरी माँ को गैस जलाने नहीं आता था, तो बोलती थी चलो नीचे चाय बनाना। मेरे पापा 5 बजे उठ जाते थे, 5:30 बजे। उसका ठंड के दिन में हाथ मुंह धो लेते थे, वॉशरूम से आ जाते थे और कपड़े पहन करके नीचे चले जाते थे। तो उनको चाय बिस्किट चाहिए था, दवाई खाते थे, गर्म पानी पीते थे, च्यवनप्राश खाते थे। तो कभी कभी ठंड में नहीं उठते थे, मटिया देते थे, तो मेरी माँ ही जलाती थी और चाय भी 1 कप बनाती थी, बाबूजी को चाय देते थे और खुद भी पीती थी और पानी वगैरह भी गरम कर लेती थी और वही याद आता था, फिर हम सो जाते थे। आज गुरुपा इधर से हमको 4-5 दिन से ऐसे ही हो रहा है। सुबह तो उठती हूँ, बस मोबाइल पे लगा के सत्संग, नहीं तो मंत्र, नहीं तो अमृत वेला लगा के सुनते मैं सो जाती हूँ और गुरुपा सुला देते हैं। और मैं और गुरुपा, पता नहीं गुरुपा हमारे कौन से माड़े कर्म, जो मेरे इतने माड़े कर्म है जो गुरुपा कटवाते हैं सपने में, इसीलिए गुरुपा हमको सुला देते हैं। और मैं सपना भी देखती हूँ और उसके बाद मैं बस लेट सेट कभी 9 बजा देती हूँ, कभी 8 बजा। तो आज तो 7 उठ गई थी। मेरी आंटी भी स्कूल जाने, तो बोली कि आज ब्रेड, तो मेरे अंकल जी ब्रेड सेक करके दे दिए और फिर मैं जगी, दरवाजा बंद की और मैंने आंटी बेटी को चंदन टीका लगाई और जल प्रसाद छींटे मारे और फिर मैं अकेले ही रूम में बैठी हुई थी और ऐसा देख रही थी कि मैं अपने घर को निहार रही थी कि ऐसे ही है, कोई दुनिया में किसी का नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है, बस मैं और मेरे गुरुपा हैं और कोई नहीं है। कितना मैं अकेली हूँ, जब घर में सब लोग रहते हैं, कितना भीड़ भीड़ रहते हैं, सब चले जाते हैं तो अकेले रहते हैं। पता नहीं गुरुपा ये एहसास क्यों डाल रहे थे कि तू ही और मैं ही हूँ, दुनिया में कोई नहीं है तेरा, सिर्फ मैं ही हूँ। ये गुरुपा सुबह सुबह एहसास दिलाए। पर मुझे गुरुपा ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ हुई, बस एक थॉट डाले गुरुपा और मुझे एहसास हुआ। फिर मैं उठ करके गई, पानी मैं गरम की, पानी सॉरी, पानी मैंने निकाला, गरम पानी थर्मस से, और मैं जल प्रसाद, गुरुपा का जल प्रसाद मिलाकर मैं बैठ के पी। फिर मैं काढ़ा गरम की, मेरे अंकल जी भी आ गए, मैं काढ़ा गरम की, अंकल जी को दिए, मैं भी पी और उसके बाद हम लोग बातें करने लगे। फिर अंकल जी बोले काढ़ा पिए तो मेरा मुंह खराब हो गया, अब चाय बनाओ। तो मैं चाय बनाई और मैं और अंकल जी दोनों चाय पिए और बहुत सारी बातें हो गई। और इस तरह से गुरुपा ने, फिर काम वगैरह मुझे करना था और उसके बाद फिर मेरे अंकल जी बोले कि बाहर झाड़ू लगाते। आज गुरुपा ने सेवा लिए अंकल जी से, पूरे बाउंड्री में झाड़ू लगवाएं, सफाई करवाएं, बाहर भी बाउंड्री में पानी छिटवाएं, इतना काम करवाएं, सेवा लिए गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मैं भी घर में पूरे पूरे घर में पोछा लगा करके पूरे, और उसके बाद मैंने अंकल जी से कहा कि नहा लीजिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जय गुरु जी। फिर अंकल जी नहाने गए और फिर मैं अंकल जी नहाने गए, बोले कि आप नहा लो, क्योंकि लाइट भी कट गई थी। और फिर अंकल जी मेरे नहा लिए, फिर नहा करके वो आए, जब तक कि मैं इधर की
और गुरुपा कल से मुझे जो बोल रहे थे बेसन में जल प्रसाद मिला करके मेरा नाम लेके लगाओ, तेरे सारे स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। गुरुपा ने बताया, तो गुरुपा आज मुझे वो भी लगाया। मैंने नींबू का अचार लगाया था, जो उससे खर्चे थे उसका जो नींबू का जो ऊपर का परत था, तो मैंने जमा करके रखी थी। बहुत ही अच्छा कारगर है। आप भी नींबू का ऊपर का जो स्किन होता है वो खुरच के लगाने से स्किन पे बहुत ग्लो आता है। तो गुरुपा ने ये लगवाया मेरे आंटी बेटी को। मैं तो 2 दिन लगाई, कल भी लगाई और आज भी लगाई। और उसके बाद ये गुरुपा ने ये भी सेवा लिए और उसके बाद मैं भी नहा करके नहाने गई और नहाने जा रहे थे तो पानी लाइट ही कट गए थे। मैं पूरे रूम में पोछा भी लगा दी पूरे घर में। तब मेरे लड्डू गोपाल नहा लिए थे। मैंने लड्डू गोपाल से कहा, लड्डू नहा लिए बाबू, अब तेरी मम्मी कैसे नहाएगी? तो मैं सोची कि चलो इतना ठंडा ठंडा मैं तो काम कर रही, चलो आज लगता है गुरुपा हमको ठंडे पानी से नहवाएंगे। तो मैं हिम्मत बना ली कि चलो हम नहा लेंगे। मैंने ब्रश वगैरह कर लिए, मुंह में पैक भी लगा लिए। उसके बाद मैं फिर क्या हुआ, लगा कि गुरुपा थॉट डाला कि पानी भी तो लड्डू गोपाल ने थॉट में डाला कि जब मैं गैस पे पानी गर्म करके नहा लेता हूँ, पापा नहा देते हैं, तो तू भी तो नहा सकती है मम्मी। तो मैं भी क्या कि एक बड़े वाले टोपिये में पानी गैस पे चढ़ा दिए और फिर मैं सोची कि अब जब तक कपड़े वगैरह खींचती हूँ पानी गर्म, जब तक यही मैं पानी चढ़ा के जवाने रहे, तो मेरे अंकल जी बोले, जाओ लाइट बंद कर दो और वहां पे पानी उसमें लगा दो। तो मैं चली गई और पानी जल्दी से लगा ली। तो मैंने जय गुरु जी शुक्र, गुरु जी भी देखते हैं कि मेरी बेटी अब संतोष हो बांध ली है। तो गुरु जी लाइन दे दिए और जब तक हम कपड़े वगैरह खींचे, वॉशरूम से आ गए, उसके बाद पानी भी गर्म हो गया और फिर मैं पैक लगा के फिर नहा ली। नहा के आई तो मेरे अंकल जी भी जोत जला करके भोग लगा दिए। तो फिर मैं आई, गुरुपा का स्वरूप से टीके उतारे, मैं भी लगाई, अंकल जी को लगाए, स्वरूप साफ किए, फिर जल प्रसाद फिर ला के लगाए, कॉफी बनाए और फिर मैं बिस्किट और कॉफी प्रसाद जल प्रसाद लगाई। तो मैं सोची कि नहीं, शाम को मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। ऐसा लग रहा था गुरुपा कह रहे हैं, जैसे जैसे लग रहा है गुरुपा कह रहे हैं तू कड़ा प्रसाद बना। तो मैंने पूजा करके फिर गई मैं किचन में, कढ़ाई में घी वगैरह लेकर के मैं कड़ा प्रसाद बनाए सूजी डाल के। और मुझे लग रहा था कि काला काला। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी आप ही देखना काड़ा प्रसाद कैसा है। इतना अच्छा काड़ा प्रसाद बना ना, सूजी डाल के आटा डाल करके जो मैंने बनाया, इतना अच्छा टेस्टी बनाए गुरुपा, कहने की बात नहीं। फिर मैं गुरुपा को भोग लगा के मंत्र उंत्र जाप करके फिर मैं आ गई, क्योंकि मेरे अंकल जी जाते हैं घर। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा घर जाना है, तो बस गुरुपा की तो मर्जी है, गुरुपा देखेंगे कुछ ऐसा है तो गुरुपा कट कर दिए खुद। फिर मेरे अंकल जी रोटी भुनने का गुरुपा सेवा गुरुपा अंकल जी से भी लेते हैं। उसके बाद अंकल जी रोटी फ्राई करने लगे, कल का रोटी जो था तो वो फ्राई करके अच्छा लगता है। मैं फिर वही गुरुपा को भी भोग लगा दी, क्योंकि ये जो कहते हैं गुरुपा जो खाते हैं आप गुरुपा को भी अर्पण करो। तो नाश्ते में तो कुछ बना नहीं था तो वही फ्राई हुआ। तो मैं वही गुरुपा को जल प्रसाद और वो लगा करके गुरुपा भी भोग लगा। उसके बाद अंकल जी बोले मैं थोड़ा सा खाऊंगी। फिर मैं चाय और जो फ्राई रोटी था तो मैं बाहर लेकर के धूप में बैठ के खाने लगी और खा भी रही थी। और मैं ऐसे ही मैं अकेली खा रही थी। तो मैं ऐसे ही मन में आ रहा था, बस उसी समय गुरुपा छोटा सा बटरफ्लाई के रूप में आ गए, दर्शन दिया कि चिड़िया आजकल नजर नहीं आता मेरे मन में से। तो गुरुपा आ गए, तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अब फिर चले गए, फिर आ गए। उसके बाद देखे चिड़िया मैना भी आने उस समय नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं अंदर अंदर चले गए। फिर मैं अंदर जाके फिर मैंने सब्जी बनाई, आलू सोयाबीन की सब्जी। फिर मैंने रोटी बनाया गुरुपा को भोग लगा करके। फिर मैं बाहर धूप में आ करके मैं गाजर और ऑरेंज ला करके मैं बैठी और फिर अंकल जी को बोले खाने दो, बोले कहीं नहीं खाएंगे तो हम खाने। फिर आंटी का बेरा हो गया तो लेते चले गए लेने के लिए। उसके बाद जो खाना खाना दोनों को दे दिए और उस समय मैसेज आ रहा था गुरुपा का, और कि मैं आवांगा तो मैं पहचान लेना। तो गुरुजी का। तो आंटी मेरी आई तो कहती मैंने कहा कैसा रहा दिन? तो कहते बहुत बढ़िया। तो कहते मम्मी क्या बनाई हो,
कि हाँ, तुम्हारा अच्छा आलू बनाया है, तो कहती आलू बनाइए, आलू क्या बनाई हो? तो कहती आलू बैंगन की नहीं तुम गेस करो, तो वो बहुत चीज़ बताने लगी, तो फिर मैं कि चलो जल्दी से खाना निकाल देते हैं। तो आंटी आज स्कूल से आई बहुत खुश है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज मेरी बेटी खुल के पूरे दाँत निकाल कर के हँस रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ही अच्छा लगता है गुरुपा, जब बच्चे स्कूल से आते हैं, खिलखिला के हँसते हैं। जब भी बेटी आती थी एकदम पूरे उदास ऐसे लग रहा था चेहरे पे 12 बजा हो और उदास मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर गुरुपा ने साथ लेके गया, साथ लेके आया हँसते हुए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। गुरुपा को शुक्राना इसके लिए गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मेरी आंटी बताने लगी, स्कूल की बातें बताने लगी कि आज मेरा बस छूट जाता तो पापा गए जैसे सुपरमैन की तरह रुकवाएँ गाड़ी और इसे खूब हँसी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दोनों को खाना निकाल के फिर मैं बाहर चली गई। फिर अंकल जी खाना वगैरह खा कर के बाहर गाड़ी साफ कर बैग साफ कर रहे थे। मेरे मकान मालिक का बेटा भी कुछ मोबाइल पे दिखा रहे थे कि चिप कैसे बनता है, तो वो सब हमको बता रहे थे। फिर अंकल जी भी आए कपड़े पहन कर के बैग साफ करते हुए, वो मकान मालिक का बेटा पूछता है, "अंकल कहाँ जा रहे हैं?" कि नहीं बस ऐसे बैग साफ कर रहे हैं। तो मुझे भी जब बैग मेरे अंकल जी साफ करते उसी समय ब्राउन कलर की बड़ी वाली बटरफ्लाई आकर के पूरी गाड़ी का एक-एक पार्ट को ब्लेस कर रहे थे। जा ही नहीं रहे थे, पूरे अंकल जी को एक-एक अंग को टच करके पूरे घूम रहे थे। कम से कम हमको लगता है 7 फेरे तो ज़रूर लगे। गुरुजी ने अंकल जी के नज़र उतारे, फेरे लगा के और गाड़ी पता नहीं गाड़ी पे कौन-सा ब्लैक मैजिक था, क्या था, क्या क्या ऐसा कुछ था। गुरुजी ने गाड़ी को ब्लेस किया, एक-एक पार्ट को ब्लेस किया। मैं भी क्या मेरे अंकल जी गाड़ी झाड़ रहे हैं, तब भी वो उड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। अब मैं कह रही गुरुजी हैं, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। हम कह रहे हैं जी गुरुजी ऐसे काहे कर रहे हैं? गुरुजी हैं, जी गुरुजी हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ। अब मेरे आंटी बेटी को देखो मम्मी अम, गाड़ी को ब्लेस कर रहे हैं। तो जी गुरुजी मेरे पास भी आओ, तो बस एक बार गुरुजी मेरे पास भी आए और घूम करके जो मेरे जो रिंग बटन है, जो नए में लगाए थे वो खराब हो गया तो लगता है और बटरफ्लाई वहीं पे जाके बैठे। पता नहीं गुरुजी को लगता होगा कि ये शायद जब यूज़ ही नहीं है तो वो बटन क्यों लगा हुआ है, उसे निकालना हो क्या पता गुरुजी। शायद मुझे यही लगा कि उस पे बैठे कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ तो निकालना है, तो गुरुजी वहीं पे बैठे। उसके बाद फिर चले गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आज आपने पति अंकल को ब्लेस किया। गुरुपा गुरुपा सब जानते हैं और गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद शाम को हम लोग बैठे चाय पर पीने बैठते। उसके बाद अंकल जी बहुत शिकायतें शादियां का लेके, क्योंकि अभी मेरे घर में बहुत सारी शादियां होगी, तो सबके घर के शिकायतें करने लगे मेरे अंकल जी। मैं मंत्र जाप कर मैं रोक भी नहीं सकती, क्योंकि बात आगे बढ़ने लगती, तो मैं बाद में बोली थी कि आप शिकायत करते हो, तो शिकायत के क्या, जो देखते वही कहते हैं ना। मैंने कहा देख लीजिए गुरुजी और गुरुपा यही सब। गुरुपा आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने ब्लेसिंग दिया इतना और दर्शन देने भी आए। और तभी गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तू हमको पहचान ली ना, मैं आया था तुझे दर्शन देने के लिए और तू हमको पहचान ली। गुरुजी का तुरंत मैसेज आया, तो मैंने आंटी बेटी को दिखाया, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। मैंने गुरुजी को आके पूजा रूम में कहा, गुरुजी मैं पहचान गई आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार दुलार करने के लिए मेरे दिल से तो यही निकलता है। सिमर सिमर सिमरो मैं गुरु जी को मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी,